Hello, dear friends. This is Engineer Asobacha once again. Get online after a long time. So today my topic is about. So it's about uh, the steel quantity, right? So, for example, if we have a concrete quantity, so in this case, like I'm talking about this thing, for example, if we have uh, a quantity, this is a quantity we have for substructure and a project which is 37,129.37 pounds, right? So for example, we have this quantity it is come from the drawing. uh, we calculate uh, this derive this quantity from the concrete, and from where the concrete comes. So this is, for example, we have a concrete item like let me show you. So this is a concrete item. We have This is a concrete item we have. So we calculated this for entire. So we this is a foundation in RCC. So we have. So basically, the concrete quantity comes from the substructure drawing. So that's a different story. I'm not gonna go with that because it's gonna take a lot of time. So to make it short, we have to calculate the quantities from drawings, and it's come out for like substructures. That is the wall footings. There's the footing beams. Then we have a toilet wall footings, then toilet ramp wall, and then we have a toilet. Then we have neck columns, right? That's a building neck column 16, and that's a toilet. But anyhow, when you have every kind of structure at your project, you have to find out the quantity in cubic feet. Once you find the quantities in cubic feet, there we go. Like for example, I make it yellow. So that's a quantity in cubic feet. Then how you have to convert this quantity into ton from concrete. If you find a steel quantity, then how you would do that? So we have this item. We have this item like if I on the annotation table. So I'm gonna highlight that we have this item like mild steel using hot roll deformed grade 60 for cement concrete that include cutting, bending, laying in position, making joint, fastening, including cost of bending wires, लेबर चार्जेस फॉर बाइंडिंग ऑफ इन्फोर्समेंट यानी इसमें जो सरिया लेबर जो है जो बेंडिंग वायर का काम करेंगे तो वो भी इसमें आएगा, ठीक है। हाँ, वो भी इसमें आएगा इस वाले में, ठीक है। तो मेरे साथ जो कंक्रीट की क्वांटिटी है, ये वही क्वांटिटी है जो ऊपर उधर से आई है, ड्राइंग से आई है सबस्ट्रक्चर की, और जिसमें फाउंडेशन फुटिंग्स है, आइसोलेटेड फुटिंग्स है, उसमें फाउंडेशन बीम है, और उसमें जो है आपके पास नेक कॉलम्स हैं, अ, और टॉयलेट्स है, उसके नेक कॉलम्स है, ठीक है। इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि आप जो क्वांटिटी मालूम करेंगे, उसका आपने क्या करना है, उसका आपने जो है आपने उसका करना है लाइक उससे आप उस आपने उसका जो है बेसिकली ये पर्सन लेना है। यू हैव टेक 2.5%। बहुत से लोग जो है 2.5% लेते हैं जब स्टील मालूम करते हैं, ठीक है, कंक्रीट क्वांटिटी के। कुछ 2% लेते हैं फाउंडेशन में। इस केस में 2.5% लिया हुआ है, ठीक है। भी हर एक कंसल्टेंट की अपनी डिज़ाइंस होती हैं जब वो स्टील मालूम करते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं। कुछ लोग 1.5 लेते हैं, कुछ 1 लेते हैं, ठीक है। हियर 2.5% हैज़ बीन टेकन, राइट। सो इसको क्या किया है कि ये जो फॉर एग्जांपल ये जो क्वांटिटी है, इसको इसका 2.5% लिया हुआ है, ठीक। उसको फिर 490 से मल्टीप्लाई किया है, तो वी गेट दिस वन, वी गेट 3000 37,129.37 पाउंड एलबीएस, ठीक है। ये एलबीएस में फिर आएगा, यानी आपको कंप्लीट क्वांटिटी को उसका परसेंटेज लेना है, चाहे 1% हो, 2% हो, 1.5% हो, 2.5% हो, 2.5% हो, और यू हैव टू मल्टीप्लाई। आपने उसको मल्टीप्लाई करना है कंप्लीट क्वांटिटी के साथ परसेंट में, नॉट सिंपल। ये जस्ट एक न्यूमेरिक आपने नहीं लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एक न्यूमेरिक लूँ और मैं परसेंटेज को छोड़ लूँ, जस्ट नंबर लिखूँ, नो इट्स नॉट द केस। तो
जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जब हम कंक्रीट को अ, जब हम सब सोचेंगे कंक्रीट को जिससे हमारे पास ये क्वांटिटी आई है, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूबिक फुट है ये मेरे पास, उसका हमने 20.5% लेना है, फिर उसके साथ हमने 490 मल्टीप्लाई करना, तो ये पाउंड आएगा। फिर इस पाउंड को हमने क्या करना है मसीह, इस पाउंड को हमने क्या करना है, तकसीम करना है, तकसीम करना है 2204, अगर हमने एलबीएस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमने जो हमारे पास ये कंक्रीट क्वांटिटी है, इसको हमने डिवाइड करना है, तो इसको हमने 2204 से डिवाइड करना है, अगर हमने पाउंड एलपीएस को, पाउंड्स को हमने अगर टन्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, हमने 490 को मल्टीप्लाई किया हुआ है इसके साथ, जो कंक्रीट क्वांटिटी आई है सबस्ट्रक्चर में, इसके साथ हमने 4.90 को मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 490 को मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो इससे हमें जो क्वांटिटी मिली है वो पाउंड्स में मिली है, ये वो क्वांटिटी है, और इसको हमने फिर तकसीम करना है 2204 को, तो इससे हमारे साथ टन में क्वांटिटी आएगी, यू कैन से टन में आएगी, ठीक है। लेकिन सवाल ये कि हमने 490 को क्यों मल्टीप्लाई किया और फिर डिवाइड ही क्यों किया 2204 से, तो इसका भी मैं आपको रीजन बताता हूँ, ठीक है। टू सम ऑफ दिस टॉपिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोई भी इंजीनियर्स को फ्रेश हो चाहे एक्सपीरियंस हो, किसी को भी नहीं आता, सारे शोधे होते हैं। देखिए आपको मैं बताना चलूँ ना कि हम जब, तो बेसिकली जब हम कोई क्वांटिटी क्या करते हैं, जब हम कोई क्वांटिटी लेते हैं कंक्रीट की, तो उसका हम 2.5% जो है, ये हमें स्टील की परसेंटेज दिखाते हैं रीइंफोर्समेंट की, क्योंकि हमने जो कंक्रीट की क्वांटिटी है उसमें हमने 2.5% जो है हमने उसका क्या किया हुआ है, हमने इसको जो है इसमें स्टील प्रपोज किया हुआ है कि इसकी क्वांटिटी, जो इसका जो वॉल्यूम है, लेंथ वेथ और डेप्थ, उसकी मिकदार से, यानी अगर 100% कंक्रीट का वॉल्यूम है, तो 2.5% उसका जो है वो क्या करेगा, उसका स्टील बनेगा, ये हम इसमें एज्यूम करते हैं, ठीक है। सेकेंडली जो है 2.5% हमें ये दिखाता है कि टोटल कंक्रीट वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय स्टील की इसमें है, तो हम क्या करते हैं 2.5% को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कंक्रीट की क्वांटिटी के साथ डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू, लाइक सपोज वी हैव 3000, सो 3000 मल्टीप्लाई बाय 2.5% या 0.025 भी हम लगा सकते हैं, तो गिव द एस्टिमेटेड वेट ऑफ स्टील इन क्यूबिक। फिर 490 जो है, ये क्या है, ये 490 जो है ये बेसिकली पाउंड्स पर क्यूबिक फुट है, डेंसिटी है हमारे पास, डेंसिटी है या यूनिट वेट है, ठीक है, मास बाय वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये एक अलग टॉपिक है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है, तो ये है, तो इसमें वेट हमारे पास मास होगा पाउंड्स में और वॉल्यूम होगा क्यूबिक फीट में, ठीक है। ये इसमें ट्रिक है। तो अगर ये सिचुएशन है मेरे पास, तो इसमें, इस केस में हम डेंसिटी को यूनिट वेट भी कहते हैं, ठीक है। तो स्टील इन पाउंड्स पर क्यूबिक फीट, तो दिस मीन कि 1 क्यूबिक फुट जो है स्टील, इसका मतलब ये है कि 1 क्यूबिक फुट जो मेरे पास स्टील है, उसका वजन 490 पाउंड्स है, या 1 क्यूबिक फुट वॉल्यूम पे 490 वजन पड़ रहा है। इसका ये भी मतलब है कि एक क्यूबिक फुट जो स्टील है उसका वजन 490 पाउंड है, सो बाय मल्टीप्लाई स्टील इन स्टील वॉल्यूम इन क्यूबिक फुट बाय 490 वी गेट टोटल वेट इन पाउंड्स, क्योंकि हमें बेसिकली जो है 490 जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है डेंसिटी है मेरे पास, ठीक है, स्टील की। तो तो इसका मतलब ये कि जो हमने कंक्रीट लिखा है, ठीक है, और हमने फॉर एग्जांपल मैं आपको एनोटेशन टेबल से लिख के दे दूँ, सो आई एम राइट बेसिकली, फॉर एग्जांपल 3000, हाँ, तो इसमें ये जो चीज़ है, ये बेसिकली मेरे पास क्या है, कंक्रीट की क्वांटिटी है। तो अगर इसमें क्लियरली यू कैन सी दैट कि ये जो
ये जो क्यूबिक फीट है, ये ये क्यूबिक फीट और ये क्यूबिक फीट कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। ये पाउंड जो है, जो डेंसिटी है, यूनिट वेट है स्टील का, एलबीएस में है। एल एलबीएस में है, यानी पाउंड्स। बेसिकली ये डेंसिटी है मेरे पास, एफपीएस सिस्टम है, पाउंड्स फुट सेकंड। तो ये बेसिक डेंसिटी मेरे पास एलबीएस पर क्यूबिक फुट में है। तो क्यूबिक फुट कैसे, तो ये, ठीक है, ये और ये तीन फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा, वो पाउंड्स में मिलेगा क्योंकि ये यूनिट पाउंड्स में है। ठीक है, तो अब जो मेरे पास जो ये क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, तो ये जो पाउंड है इसको हमने 2204 से डिवाइड किया है। ठीक है, यानी इसको हम क्या करते हैं, 2204, ये 4 रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा लेकिन मैं इधर लिखता हूँ 204, इससे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो व्हाट इज 2204, हमने तो पढ़ लिया कि 490 जो डेंसिटी है स्टील की एनएफपीएस सिस्टम में। ठीक है, तो अब 490 क्या चीज है, तो 490 जो है बेसिकली ये क्या, 2204 क्या है, ये बेसिकली जो है एक दो 2204 पाउंड बराबर है 1 टन के, यानी 1 टन इज इक्वल टू 2204। 1 टन में 2204 पाउंड होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो पाउंड्स में है, तो हमने इस पाउंड से स्टील टन सर ये निकालना है। तो इसको हम 2204 से डिवाइड करते हैं, हम टन में हमें सही आ जाता है। ये सुपर स्ट्रक्चर है और ये सब स्ट्रक्चर, इनकी क्वांटिटीज ऐड हुई है, वो ये है टोटल। लेकिन हम तो कंसर्न करते हैं, हमारा तो कंसर्न है सबसे स्ट्रक्चर की आरसीसी में। अगर हमने पूरा जो है बिल्डिंग का करना है, सुपर स्ट्रक्चर का भी करना है, तो तब सम जमा करेंगे, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल सब स्ट्रक्चर पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो उस केस में जो ग्रेड 60 के लिए हमारा जो आरसीसी क्वांटिटी आई है, तो उसमें ये जो कोड आपको है, ये मार्केट स्केड्यूल के कोड है 0607-B02। तो इसमें मैं इसको ये जमा हुआ है और मैं इधर क्लिक करूंगा, लाइक इस टन में मैं क्लिक करूंगा, ये जो टन है मेरे पास। ठीक है, मैं शो कर रहा हूँ आपको, ये मैंने लॉक किया नोटेशन टेबल से। तो ये मैं अगर इस पे क्लिक कर लूँ, इस वाले पोर्शन पे मैं अगर मैं क्लिक कर लूँ, तो जो सेल मेरा एक्सेल ऊपर बनेगा वो मैं आपको शो करूँ।